ناظرین ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پاپا دیکھیے وہ مسئلہ وہیں پہ رہ گیا کہ جب وزیر اعظم نواز شریف یہ کمپرومائز کریں گے, اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا, یہ معاہدہ ہوتا ہے, اس میں جیسے کہ جان اچکزئی نے کہا کہ کم از کم ہمیں ایک ایمنیسٹی براڈلی دینی پڑے گی, قیدیوں کو چھوڑنا پڑے گا, کمپنسیشن پیکج دینا پڑے گا, ڈیولپمنٹ پیکج دینا پڑے گا, تو وہاں پہ قیدیوں کو چھوڑنے کی جو لیگل امپلیکیشنز پیدا ہوں گی کہ پرائم منسٹر اس کو کیسے کر پائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا مسئلہ کیا ہوگا. 2 اسٹیک ہولڈرز اور آ جاتے ہیں آپ کے. ایک فوج آ جاتی ہے, کانوکٹس جو ہیں جی ایچ کیو کے اٹیک کے فار ایگزامپل کل بھی ہم نے بات کی, انہیں کیسے چھوڑیں گے؟ فوج مانے گی ایک اسٹیک ہولڈر. دوسرا اسٹیک ہولڈر جوڈیشری ہے. آپ کوئی قانون لے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کیونکہ اکراس پاکستان ہے نا, فاٹا کے لیے تو آپ پریزیڈنٹ بنا سکتا ہے خود آرڈیننس. باقی ملک میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, آپ کو پروونشل لاز بھی چاہیے. آپ اگر ٹیررزم کے حوالے سے کوئی ایسا قانون بنا دیتے ہیں جس کے اندر آپ ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں, تو یہ پھر ایک آئینی کوئی بھی جو کاغذ بنے گا وہ پھر عدالتوں میں جائے گا. کیا پارلیمنٹ کوئی ایسی ایمنیسٹی دے سکتی ہے تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کو عدالتوں میں سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کیا جا سکے؟ نہیں, چیلنج تو ہر چیز دیکھیں نا, سوال ایسا ہے, ایسا ہوتا ہے نہیں, تاریخاً تو ہوتا ہے نا. آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں تو ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھنا پڑے گا. کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں تو عدالت میں, کیونکہ چیلنج کیا چیز ہوتی ہے؟ چیلنج یہ ہوتی ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے, تو آئین کے مترادف. چونکہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ آ سکتے ہیں ایمنیسٹی پیکج میں, ریزسٹنس آئے گی اے این پی کی طرف سے. سینٹ میں کیسے کریں گے؟ سینٹ میں کیسے کریں گے؟ ان کی تو میجورٹی نہیں ہے سینٹ میں. تو پرائم منسٹر نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. کانسٹیٹیوشنل پیکج تو آپ نہیں لا سکتے نا, آپ میکسیمم لا سکتے ہیں, قانون بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قانون چیلنج بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ اسیوم نہیں کرتے کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. میرے خیال میں ڈسکریشن عدالتیں بھی چھوڑ دیتی ہیں ایگزیکٹو. میری پرائم منسٹر نواز شریف کو بہت پولیٹیکل کیپٹل اسپینڈ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نواز شریف سیاسی طور پر کتنا بڑا اپنے آپ کو اسٹیک آؤٹ کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ان کو عمران خان کی سپورٹ مل جائے گی, لیکن شاید اس ایمنیسٹی پیکج میں ان کو ایم کیو ایم کی, پیپلز پارٹی کی اور اے این پی کی سپورٹ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. تو یہ بہت بڑا جو ہے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن یہ مسئلہ تو محض وزیرستان کا نہیں ہے نا. جیسے کہ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی آپ نے رپورٹ دیکھی ہے جو گزشتہ دن آئی ہے سعید شاہ کی, اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ کراچی کے اندر بھی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے ٹی ٹی پی کی. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ہمارے سامنے ہے اس کا نقشہ. آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 لینڈ میس جو ہے کراچی کا وہ اس وقت ٹی ٹی پی کے کنٹرول میں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1/8 لوگ جو ہیں 2.5 ملین وہ 2 کروڑ میں سے وہ ٹی ٹی پی کے کنٹرول میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 33 یونین کاؤنسلز 178 کے اندر سے وہ 33 یونین کاؤنسلز. اور اگر یہ دیکھیں تو یہ کوئی آسیب کا کچھ سایہ لگتا ہے کہ آپ اس نقشے کو دیکھ رہے ہیں. میری کوشش ہے اسکرین پہ بھی آ جائے, جس میں ساؤتھ میں ہمیں کراچی کے لانڈی نظر آتا ہے, نارتھ میں ہم گداب ٹاؤن کو دیکھتے ہیں, پھر ہمیں ہب نظر آتا ہے, نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ میں منگو پیر ہے, بلدیہ ٹاؤن ہے, یو ایس کاؤنسلیٹ کے آگے پیچھے کا علاقہ ہے, صدر ٹاؤن کا سینٹرل علاقہ ہے. اور ان تمام علاقوں میں وال اسٹریٹ جرنل نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ طالبان کا ان یونین کاؤنسلز پر کنٹرول. ویسے وال اسٹریٹ جرنل نے یہ اندازہ لگایا کیسے ہے؟ کل میں نے دیکھا ہے کسی نے میری فیس بک پہ لکھا ہے کہ بابر ستار نے یہ ریفر کیا ہے. بابر ستار سے یہ پوچھیں کہ وال اسٹریٹ جرنل کو کیسے پتا چل گیا ہے جب جیو کو نہیں پتا چلا, پاکستانی ٹیلی ویژن کو نہیں پتا چلا, ایکسپریس کو نہیں پتا چلا, پاکستانی پولیس نے یہ دعویٰ نہیں کیا, کسی ریسرچ باڈی نے نہیں کیا, تو وال اسٹریٹ جرنل نے اتنی آسانی سے اتنا بڑا اندازہ. ڈاکٹر صاحب اگر تو ایک اس میں رپورٹ پڑھ لیں, انہوں نے تمام لوگوں کو کوٹ کیا. انہوں نے احمد چنائی کی بات کی ہے جو سٹیزن پولیس لیزون کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ بتا رہے ہیں مختلف یہ کنٹرول کی وہ بات کر رہے ہیں, تو اس میں وہ راجہ عمر خطاب جو سی آئی ڈی کے آفیشل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹاکس فیل ہو جائیں گی تو اتنا زیادہ کنٹرول ہے. چند لوگوں سے بات کر ہاں چند لوگوں سے بات. لیکن دیکھیں 2 اور نقشے بھی اس سے پہلے بنے ہوئے ہیں. ایک تو پولیس نے اپنا نو گو ایریاز کا نقشہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں وہ جا نہیں سکتے پولیس اور رینجرز. ایک اور انسٹیٹیوٹ ہے پبلک پالیسی ریویو سینٹر, یہ پہلے آئی جی ہوتے تھے افتخار احمد صاحب, ان کا یہ ایک سینٹر ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. انہوں نے الیکٹورل وائلنس کے اوپر کام کیا. ان کا بھی یہی اندازہ تھا کہ جہاں جہاں پولیس نے ایک اپنا نقشہ بنایا ہوا تھا الیکشن کے لیے کہ کہاں سے ہمیں اٹیکس ایکسپیکٹڈ ہیں, وہ ایریاز تھے جو ٹی ٹی پی کے علاقے تھے. الیکشن میں بھی تقریباً 35 اٹیکس میں سے 25 جو ہے وہ کراچی میں ہوئے تھے. اچھا, تھوڑا مجھے اس پہ بڑا انٹرسٹنگ احتراز ہے اس کو دیکھ کے, میں نے بھی اس کو بڑا ڈیٹیل سے دیکھا ہے. آپ اس نقشے کو اگر دیکھیں نا, یہ ساری کی ساری بیلٹ جس کو یہ ٹی ٹی پی کی بیلٹ کہہ رہے ہیں, یہ در حقیقت کراچی کے پیریفرل وہ ایریاز ہیں سینٹرل کراچی سے باہر جو ایک طرح سے کراچی کی پختون بیلٹ ہے جہاں گزشتہ 20-25-30 برس میں بہت انٹینس پختون مائگریشن ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے یہ رپورٹ تھوڑی سی انبیلنسڈ ہے. یہ رپورٹ صرف ایک پرسپیکٹو ہمیں دکھا رہی ہے کراچی کی ڈیموگرافک پالیٹکس کا. اس کا دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ کراچی میں جو ہے آپ دیکھیں نا کہ 33
यूनियन काउंसिल्स की बात की 178 में से, ये बन जाती है 1/6। फिर इसी रिपोर्ट में लिखा है कि इसमें तकरीबन 2.5 मिलियन, अगर बढ़ा भी लेंगे, इसमें लिखा है 2.5 मिलियन आबादी जो है उसके टीटीपी का कंट्रोल है। हाँ। ये 1/8 के करीब या 1/9 इशारिया बन जाएगा कराची की तकरीबन 2 करोड़ की आबादी का। बाकी सारे कराची का कोई जिक्र नहीं है कि वहां किसके मिलिटेंट गैंग कंट्रोल करते हैं। मेरी जो तमाम तहकीक है, या जो मेरी इस पे समझे एक एनालिसिस है, वो ये है कि कराची एक मजहबी शहर था हमेशा से, और दुनिया की सियासत में 2 ही बड़े मुहरकात होते हैं, एक मजहब का और एक कौम परस्ती का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मजहबी जमातों को, जमात इस्लामी और जेईओ वगैरह जो जमातें थी, बाहर निकाल दिया, इनको धक्का मार के बाहर निकाला कौम परस्ती के भूत से। उसके बाद कराची के अंदर उन्होंने अपने मिलिटेंट के विंग खड़े किए और उन्होंने पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, और बहुत हद तक उन्होंने उसमें से बाहर रखा। सो कराची की जो स्ट्रीट डोमेस्टिक, उन्होंने एक पैटर्न यहां पर इजाद किया मिलिटेंट विंग के जरिए। उन्होंने कराची की सियासत को, उसकी तहसील को उन्होंने कंट्रोल किया। अब ये जो 33% या 33 यूनियन काउंसिल है, ये वो है जहां एक और जंगजू किस्म की कौम, जो मजहबी भी है, कौम परस्त भी हैं, पश्तून कौम परस्त भी हैं, और हथियार कैरी करते हैं, और तंजीम उनकी ट्राइबल किस्म की पीछे तंजीम बंद है जिसके साथ टीटीपी जुड़ गई है। ये दर हकीकत 1/6 या 1/7 ऑफ द सिटी जो है, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मिलिटेंट विंग्स ने, बस मैं खत्म कर लूं, उन्होंने लूज आउट कर दिया है टू दी पश्तून मिलिटेंट्स। और इसका मसला आप बताइए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसका मसला महज ये रेंजर्स और पुलिस की हद से नहीं निकलेगा। मुत्तहिदा को, वो हमारी बात नहीं मानते, नाराज हो जाते हैं जब भी बात करें, लेकिन उनको थोड़ा सा ठंडे दिल से बैठ के समझना पड़ेगा कि कराची की पॉलिटिक्स का हल है। डॉक्टर साहब छोड़ें, एक दफा 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं मुत्तहिदा को। आप कह देते हैं टिल्ट है इसमें, एमक्यूएम का जिक्र नहीं है, क्या बात ये नहीं है? बात ये है, ये तो बात समझ आ गई कि सेटलमेंट, पश्तून सेटलमेंट जो है वो शहर से बाहर हो रही है, वहीं पे कराची एक्सपैंड कर रहा है। इशू ये है कि वो एनपी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए, एनपी का बड़ा इंटरेस्टिंग 2008 में, 2007 में एमक्यूएम रो रही थी, पीट रही थी कि जनाब ये बाहर से आ रहे हैं। हमने सबने कहा कि ये देखें, ये तो मुहाजिर हैं, ये किसी को और को, किसी को शहर में नहीं आने देना चाह रहे। ये भी एक फैक्ट है कि लोग बताते हैं कि 25% तकरीबन आबादी कराची की जो है वो पख्तून आबादी है। सो एएनपी का जो रोल था वो बढ़ रहा था। मैं एक्सप्लेन करूं, 2011-12 तक तो ये इस तरह से चल रहा था, लेकिन जब लड़ाई अंदर ही हो गई पख्तूनों के अंदर, तो कंट्रोल एएनपी से निकल के टीटीपी के पास। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है, मैं इसमें थोड़ा सा आपको भी व्यूअर्स को रिमाइंड करवाऊंगा। आपने देखा 3-4 दिन पहले जब शरीयत की बात की टीटीपी ने और मौलाना यहां पे अजीज साहब ने, मौलाना अब्दुल अजीज ने, तो जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, समीउल हक ग्रुप, सुन्नी इत्तेहाद वाला जो है ना, वो खाने को पड़ गए उनको। एक एक लीडर उनका उठा, उसने कहा आइन ये वगैरह। वजह क्या थी? वजह देखिए, पावर पॉलिटिक्स होती है। पाकिस्तान की जो जमी जमाई पुरानी ट्रेडिशनल सियासी जमातें हैं, इन्होंने देखा कि ये टीटीपी और ये नए जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये हमारे राइट पे इमर्ज कर रहे हैं और ये शरीयत को क्लेम कर रहे हैं और ये हमसे हमारी पॉलिटिकल टर्फ छीन रहे हैं। एएनपी के साथ भी हुआ। शुरू में एएनपी ने तालियां मारी कि शायद ये जो पश्तून मिलिटेंसी यहां पे है, ये हमें एक लीडरशिप देगी। एएनपी इस मिलिटेंट नए विंग में पश्तून पेनिट्रेट नहीं कर सकी। उसकी जो ट्रेडिशनल 1-2 सीटों की सियासत, ये बात नहीं है। मैं इस पर आपके साथ डिसएग्री करता हूं। देखिए, पहले देख तो ले किस चीज को डिसएग्री। मैं इस बात पर डिसएग्री करता हूं कि ये नेचुरल वोट बैंक एएनपी का ही होना था। अगर एक अंडरग्राउंड मिलिटेंसी, कराची में अंडरग्राउंड मिलिटेंसी ना होती। देखिए, एक साहब को, एक टीटीपी के बाशिंदे को ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंटरव्यू किया। वो खुद बताते हैं कि मैं पहले एएनपी के लिए काम कर रहा था और अब मैं टीटीपी। होता क्या है, जो हम कल भी बात कर रहे थे, कि जब एक तरह की मिलिटेंसी और ये तशद्दुद वाला काम शुरू हो जाता है, तो जो भी सबसे बड़ा बदमाश होता है आप उसके साथ शामिल होना चाहते हैं। आप छोटे बदमाश के साथ क्यों शामिल? तो जितनी मिलिटेंसी है, तो सवाल हमने जब कराची में भी बात की, सवाल ये नहीं था कि आप ऑपरेशन करें, सवाल ये था कि अगर ऑपरेशन करके आप तमाम मिलिटेंसी खत्म करते हैं फिर तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप फिर एमक्यूएम की खाली खत्म करेंगे और उसकी जगह टीटीपी आ जाएगा फिर प्रॉब्लम। हम एमक्यूएम को भी ऑन करते हैं और पश्तून को भी ऑन करते हैं। लेट्स मी टेक अ ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, आई थिंक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। बाबर, मैं सिर्फ आपकी उस चीज का जवाब दे रहा था कि एएनपी क्यों डिस्प्लेस हो गई। एएनपी पेनिट्रेट नहीं कर सकी इस नई पश्तून पॉपुलेशन में। गन का मसला था, वो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, वो ज्यादा हार्ड थे। एएनपी इसलिए नाखुश है, लेकिन दर हकीकत इस सियासत को ठीक करने के लिए देखिए एमक्यूएम की डिजायर क्या है। एमक्यूएम की सोचती है कि गुज़िश्ता 20-15-20 बरस में एमक्यूएम ने कराची को अपना शहर समझा है। 70-80% वोट उनका था, जनरली उनका वोट था। एब्सोल्यूट, जो आपने खुद कहा 3-4 दिन पहले जब हम कराची में पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, आपने कहा एमक्यूएम की एक नेचुरल कुदरती डिजायर है कि वो एब्सोल्यूट कंट्रोल मांगते हैं। ठीक है, एमक्यूएम को यह समझना है ठंडे दिल से कि उनको इस शहर में अब एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं मिल सकता। यहां एक नया प्लेयर पैदा हो गया है जो उनकी तरह कौम परस्त भी है, मजहबी भी है, उसके पास हथियार भी हैं, उसकी ग्रीवेंसेस भी हैं, उसके पास एक नैरेटिव भी है कि जो मुझ पर अमेरिका। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एमक्यूएम को नहीं समझना, खाली हम सबको समझना, ये पीपीपी को भी समझना है, ये एएनपी को भी समझना है और ये पीएमएलएन को भी समझना है, और 3 बातें समझनी। हुकूमत क्या करती है? ठीक, आप
सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, इलाके का कंट्रोल करके इलाके का उन्होंने 33% कंट्रोल ले लिया। एक चीज। दूसरा क्या करते हैं, आप टैक्स लगाते हैं, पैसा जमा करते हैं, भत्ता करते हैं, पैसा जो टैक्सेशन सिस्टम क्या है, पैसे लेते हैं ना आप। ये कहते हैं कि 18 रुपए का जो ब्लॉक बिकता है उसके ऊपर वो 3 रुपए फी ब्लॉक चार्ज कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं बताता है कि उसका शायद 4 रुपए एमक्यूएम भी लेती होगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हर इलाके के बंदे का जो 40,000 कमाता है वो 1,000 रुपया देता है। टैक्सेशन सिस्टम बन गया। तीसरी चीज क्या, जस्टिस सिस्टम, इंसाफ का सिस्टम, निजाम। क्या कि जो कुंडे डालते हैं, जो बिजली चोरी करते हैं, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दो, जो बिजली चोरी करते हैं उन्होंने जाके एतराज किया क्या कि जनाब हम तक बिजली नहीं जाती पहुंचती क्योंकि जो पहले बैठे हुए हमसे वो बड़े कुंडे डाल लेते हैं। उन्होंने निजाम बना दिया कि जनाब इससे ज्यादा आप चोरी नहीं कर सकते, और इसका फिर अपील प्रोसेस भी है। अगर इस शुरू से ना हो तो फिर मीरम शाह में आप जाकर बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी रेलेवेंट आप बात करें। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहता हूं, ये किसने सिखाया पश्तून मिलिटेंट को? जब मुत्तहिदा ने सिखाया होगा, डॉक्टर साहब एमक्यूएम ने सिखाया होगा। नहीं, मैं एमक्यूएम वाले भी हमारे भाई हैं, ये हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, हमें दोनों को ओन करना है। मैं कह रहा हूं कि ये तो जो सूरत हाल है ये निकल गई। थोड़ा सा समझाने देना, एमक्यूएम के मिलिटेंट भी हमारे भाई हैं, ठीक है, हमें उनको भी ओन करना है। मेरे तो भाई नहीं है मिलिटेंट। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारी कौम है ना, हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। समझना ये पड़ेगा कि देखें, चूंकि इन्होंने मिलिटेंट विंग खड़े किए, मुत्तहिदा ने मिलिटेंट विंग खड़े किया, वहां की सियासत को कंट्रोल किया, भत्ते को कंट्रोल किया, रिसोर्सेज को कंट्रोल किया, बिजनेसेस ने इनको पैसे दिए। यही चीज पश्तून मिलिटेंट ने सीख लिया है कि 40,000 में से 1,000 रुपया देंगे, सीमेंट में से देंगे, थाना कैसे कब्जा करना, सारा कुछ करना है। अब इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि अब आपको टोटल कंट्रोल नहीं मिलेगा, आपको कराची शहर की गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, वहां पर जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पाए है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले आपको सियासी डिस्ट्रीब्यूशन को तस्लीम करना पड़ेगा। उन्होंने, आपने खुद अब ये रिपोर्ट कहती है ना, 33% शहर तो उन्होंने फतह कर लिया, ठीक है, नीचे से ही फतह कर लिया, तो इसका मतलब है कि आप एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन वापस। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा फर्क जो है वो ये है कि एमक्यूएम, हम कह देते हैं कि ये मिलिटेंट एक्टिविटी खत्म करें, हम ये कहते रहे हैं, हम अग्री करते हैं इसके साथ। एमक्यूएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका स्टेट के अंदर एक स्टेक है, वो नेशनल असेंबली में आके बैठते हैं, वो प्रोविंशियल असेंबली में जाके बैठते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट चलाते हैं। वो एक अगर गलत काम कर रहे हैं या उनकी सरपरस्ती में हो रहा है वो एक बात है। टीटीपी क्या करती है इसमें से? आप टीटीपी को लेजिटिमेट, ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे आप स्टेक होल्डर नहीं मान सकते। देखिए, ये स्टेक होल्डर नहीं है, पख्तून स्टेक होल्डर है कराची में। थोड़ा सा पख्तून ही स्टेक होल्डर है, टीटीपी स्टेक होल्डर नहीं है। लेकिन जब एमक्यूएम बनी थी 78, 79 ऑनवर्ड्स, महाजर एसोसिएशन में से बनी थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो भी एक बड़ी ही ताबड़तोड़ किस्म की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आई है। जब 1988 में पहली दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको कराची की पॉलिटिक्स में लेके आई थी, तो एमक्यूएम को ये भी समझ नहीं आती थी कि गवर्नमेंट से पीपल्स पार्टी के मायदा कैसे करना है। ये जो पश्तून वोट बैंक पैदा हो गया है कराची की पॉलिटिक्स में, सोशो इकोनॉमिक में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको नुमाइंदगी देनी पड़ेगी। ये नुमाइंदगी अब दो जगह से आएगी। अगर एएनपी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करे तो वो इनकी नुमाइंदा बन सकती है और टीटीपी से इस पॉलिटिक्स को छीन सकती है। दूसरी जमात जो मुझे नजर आ रही है, और मुझे लोग बड़े जूते मारेंगे इसमें, वो मुझे लगती है कि यहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, लोग आपको जूते मारेंगे, केपी में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है, इसलिए कि पीटीआई के लड़के जूते मारने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। लेकिन मुझे लड़कियां जूते नहीं मारते मारे अलग। देखें, जो क्राउड जिसने पीटीआई को बहुत वोट दिया है, चूंकि पीटीआई एक ज्यादा फाल, फंक्शनल, पॉलिटिकली लेजिटिमेट और कोशर किस्म की जमात है, वो इसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है, इस गुस्से, इस एंगर को जो पश्तून वोट बैंक है। बहरहाल एएनपी को और पीटीआई को अपनी पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कराची में, और ये जो नया पश्तून किड या ये जो नया प्लेयर पैदा हो गया है इसको लाना पड़ेगा। इस हद तक मैं समझता हूं कि वॉल स्ट्रीट का ये जो पीस था सईद शाह साहब का, इसने बहुत इन्फॉर्मेटिव पीस है, बड़ा अच्छा इसने काम किया, डिबेट भी करवाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अनबैलेंस है। ये इसको सिर्फ एक पश्तूनों को एक सिर्फ टीटीपी के खाते में डाल दिया। ये सारे टीटीपी नहीं है, इसके अंदर ये पश्तून ग्रीवांस शामिल है। ये वो पश्तून हैं जिन्होंने 1947 के बाद भी माइग्रेट किया, फिर अफगान जंग के बाद माइग्रेट किया, फिर इन्होंने डॉक्टर साहब 9/11 के और फिर सवात की जंग के। पीस ने बिल्कुल इस पीस ने खाली झंझोड़ा है। देखें, एक बड़ा शहर होता है, वहां पे माइग्रेशन होगी। जो माइग्रेंट्स होते हैं वो वैसे भी समाज के बिल्कुल बॉर्डर्स पे होते हैं, वो हर तरह की चीज में एग्री कर लेते हैं। मेरा खाली टेक अवे इससे ये है कि आप देखिए खतरे की नौयत बहुत बढ़ गई है। अब आप खाली फाटा हेडक्वार्टर होगा, लेकिन ऑपरेशनल जोन जहां से पैसा आता है, जहां से कंट्रोल आता है, जहां से और बड़े काम आते हैं। अब मोमंत की टीटीपी ने अग्री किया, उन्होंने मारा, उन्होंने कहा कि क्लेम किया उन्होंने चौधरी असलम को मारा। क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट है कराची में और चौधरी असलम उनके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे थे। सो बहुत सा ये फैलाव हुआ है। सो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये जंग करनी है, आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपको एक सेंट्रलाइज पॉलिसी पाकिस्तान के लिए भी बनानी पड़ेगी। आप कराची में ऑपरेशन करते हैं जिसमें इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि 60 के करीब टीटीपी के और बाकी तमाम बाकी लोगों के। इस ऑपरेशन का अगर
इफेक्ट ये निकलता है कि टीटीपी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, तो उसका नुकसान है। एक्चुअली बाबू मुझे उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है और पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कराची शहर में हमें गवर्नेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स हैं उसको हमें भरना पड़ेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फाल बनाना पड़ेगा। और एक और बहुत बड़ा जो आपकी कम्युनिटी है, मैं समझता हूं जुडिशरी जो है वो बड़े बड़े इश्यूज में तो पाकिस्तान में बहुत पड़ गई है कि प्राइम मिनिस्टर का, मुशर्रफ का, सदर का क्या करना है, फलां बड़ी चीजों में कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी भी हमारी तरह, जैसे हमें रेटिंग की जरूरत है, तो डॉक्टर साहब अलग प्रोग्राम करते हैं। एक फाइनल बात में मैं एक बात खत्म कर लूं। देखिए जिस तरह से हमारे एंकर्स को हम सबको है ना कि रेटिंग्स हमारी आनी चाहिए, जज साहिबान भी माजरत के साथ रेटिंग के और पॉपुलिज्म के चक्कर में पड़ गए। उनकी जो असल ड्यूटी है ना कि कत्ल का मुकदमा, अगवा बराए तवान, दहशतगर्दी, अगवा, रेप, जना, वहां फैसले नहीं हो पा रहे। आजकल नॉन रेटिंग वाली कोर्ट है डॉक्टर साहब। ये देखिए डॉक्टर साहब, एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने ये काम किया है कि हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हैं। ये मकसद नहीं है कि टीटीपी मोमंत को निकाल के आप खान सजने का ग्रुप को जो है वो कराची दे दें। ये डिविजन नहीं, ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। कराची पे हमें तफसील से मजीद बहस करनी चाहिए। नाज़रीन, आपने हमारी डिस्कशन देखी और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।